Welcome to Healing Circle Talks, everyone. And today it's again a very special circle today because we will be interacting with childhood cancer survivors, and very happy to have all of them with us. And thank you so much, Pukhraj, for connecting them to us. So great. Before we begin the circle, would like to read the guidelines. Healing Circle are based on the foundation of kindness and respect. We all participants agree to treat each other with kindness and respect and listen to each other with compassion and curiosity. We honor each other's unique ways of healing and don't presume to advise or fix or try to save each other. We hold all the stories shared in the circle within us, and we trust each one of us has we need the guidance within us, and we rely on the power of silence to access it. So welcome once again. And uh, as they say, cancer in life does not mean cancer from life. Fight and be victorious. This is what Pukhraj has been telling us. And today we have our superheroes. And sometimes superheroes reside in the hearts of small children fighting big battles, जिससे हम सबको बहुत डर लगता है कई बार. So आज हमारे साथ है भरत, देवांश, Krish and Ravi, who courageously fought cancer when they were kids. Bharat is a brain tumor survivor diagnosed at the age of 17. Devansh is a thyroid cancer survivor diagnosed when he was only 13 years old. Krish was diagnosed with acute lymphoblastic lymphoma when he was just 3. And Ravi fought blood cancer at the age of 12. All of them did not let cancer stop them from spreading their wings and flying high. So, welcome everyone, and very glad and honored to host this platform with all of you, and thanks to Divya as well for connecting us together. So and Pukhraj, you are there, buddy, right? I think Pukhraj's video got stuck. Great. So I will request Bharat to share his journey. I'm requesting you to unpun. Right. So Bharat, आप मुझे सुन पा रहे हो? Anji, I can hear you. Okay, great. So Bharat, when you were diagnosed, आपका you were 17 years old, right? So कितने साल पहले की बात है ये? This is about 2.5 years ago, I guess, because I'm 20 right now. Okay. And it happened in my treatment started from the month of September 2018. Okay. Okay, and what symptoms you had when you were diagnosed? I was feeling very nauseous. I wasn't able to eat, and my energy levels were down, and so much more. Like, though I can't even remember what all symptoms I was experiencing that moment. Mm-hmm. And what standard you were in at that time? I was in class 12 that time, and my parents had to take me off. My parents had to drop me off. Had to drop me out from the school. Okay, so you took a pause from the school for some time? Yes. Okay, and how are you feeling now? I'm feeling much better, to be honest. Mm-hmm. Just time heals everything, Right. according to me. It does, it does. So you already started your schooling again? See, now I'm giving my boards through open school. Mm-hmm. You know, NIOS is the name of the board. I'm giving my boards through them. Got it. Okay. Thank you for sharing that. So, Bharat, आपका journey cancer diagnosis के बाद में how it has been transformed for you? I didn't get the question. So, you know, we have certain ambitions. There are a few things that we want to do. We want to reach at some place. We want to do certain things, that goals and ambitions we have. But when something like this happens, all of a sudden we realize that the priorities are different, purpose is different. So, how it has changed for you? See, I was always an ambitious person before my tumor got diagnosed, and I always wanted to reach the top of this universe, perhaps. But ever since cancer, I've started respecting time a lot more. I've started respecting process. I've started respecting things like I didn't even used to believe in all this. Kya kehte hain? It's all written in the stars, as they say. Yeah. So I'm just believing in my stars these days now. Okay, got it, got it. And what did you discover from this journey? कि कई बार किसी को somebody, you know, sometimes people discover their purpose of life or what do they want to do, or
they start respecting, as you said, you start respecting time. So or their relationship, they focus more on the relationship or what they want to pursue in life. See, I started my own blog. You can like read it, and I've like mentioned everything in that. Mm-hmm. I've started my own blog. I'll send you the link after this meeting. Okay, that's wonderful. Great. And what are your hobbies, Bharat? What do you like to do in your free time? In my free time, so I'm on my phone. That's what I do in my free time. But otherwise, my hobbies are like playing sports. I used to be pretty good at playing sports before that. Before my tumor got diagnosed, I was good at writing as well. I still write these days as well. So yeah, that was pretty much about it. Okay, okay. Like, and we have Divya with us, so she writes to cancer, talking to cancer. And what kind of things that you write, your own journey? Everything, like currently I'm writing about my own journey, and soon I'll expand it as well. Mm-hmm. Okay. So, Bharat, when you see this entire experience with cancer, how do you see this? What are the learnings that you received from this journey? See, I've learned a lot from cancer, which I won't be able to share and or express in this meeting. So yeah, I've like learned a lot from cancer, like a lot of lessons about life, a lot of lessons about relationships, a lot of lessons about the value of money, the value and importance of money in one's life. I've learned a lot. Okay, great. Thank you for sharing that. Uh, we would like to speak with Devansh. You there? Yes, ma'am. Hi, Devansh. How are you? Hello, ma'am. I'm fine, ma'am. Good to see you. Thank you. Great. So, Devansh, would you like to share your experience? You were 13 when you had thyroid cancer, right? And Yes, how ma'am. old are you now? I am 20. Okay. So, please share about your experience in last 7 years. तो मैं 8th में था जब मुझे डायग्नोज हुआ था. तो स्टार्टिंग में मेरी जो आवाज़ थी, वो वॉइस वो थोड़ी भारी हो गई थी. इट्स लाइक हैवी गॉट. Mm-hmm. एंड तो हम अपने फैमिली डॉक्टर पे विजिट करने गए थे. तो उन्होंने कहा था कि इसको आप अभी हॉस्पिटल ले जाओ. इसके मतलब गले में नॉट्स हैं, कुछ हैं, उनको दिख रहा था. तो कह रहे इसको आप अभी इमरजेंसी में ले जाओ. तो हमने फिर नेक्स्ट डे में विजिट किया था. तो हम यहाँ दिलशाद गार्डन में जीटीबी हॉस्पिटल है, वहाँ पे मैंने सबसे पहले दिखाया था. तो वहाँ पे मेरे कुछ टेस्ट हुए थे थायराइड को लेके, बट यहाँ पे उतना क्लियर नहीं हो पा रहा था. तो इन्होंने यहाँ से एम्स में रेफर किया था मुझे. तो हम उसी साल एम्स में 5th ऑफ सितंबर को मैंने एम्स में विजिट किया था पहली बार. देन एम्स में मेरे कुछ टेस्ट हुए थे. तो दिसंबर में 13th ऑफ दिसंबर को मेरा ऑपरेशन हुआ था. देन उसके बाद उन्होंने थायराइड ग्लैंड निकाल लिया था पूरा. तो उसके बाद मुझे जब डिस्चार्ज किया गया था, उसके बाद मैं घर पे था. तो मेरा स्कूल छूट गया था उस टाइम पे, मैं 8th में था. तो मेरे स्कूल में डिस्चार्ज होने के बाद एक्चुअली मैं एक दिन स्कूल गया था थोड़ा टाइम पीरियड के बाद. तो मुझे स्कूल से वापस घर भेज दिया गया था कि आप अभी स्कूल में नहीं बैठ सकते, बिकॉज आपका भी ट्रीटमेंट हुआ है. तो आप एग्ज़ाम के टाइम में आइएगा, पेपर दिएगा और फिर जाइएगा. मैं कहा ओके. तो उसके बाद मैंने स्कूलिंग लाइफ अपनी ख़त्म की 10th में. 10th के बाद 10th के बोर्ड्स के बाद 3 months का गैप आता है हमारे लिए रिजल्ट के लिए. तो उस गैप में मैं मतलब थोड़ा डिप्रेस हो गया था कि मैं अब क्या करूं. मुझे समझ नहीं आ रहा था कुछ. तो मुझे पुखराज से मिले थे, कैंसर सपोर्ट एनजीओ के ईस्ट ओबीसी में. वो आए थे, तो उन्होंने एक कहानी सुनाई थी. तो मैं उस कहानी से थोड़ा इंस्पायर हुआ था. तो फिर मैंने सर से बात की थी. तो सर ने पूछा था कि तुम्हें मतलब लाइफ में करना क्या है. तो मैंने तब सर को बताया था कि आई लाइक एक्टिंग, आई लाइक टू डू एक्टिंग. तो सर ने कहा Same. ओके, मैं तुम्हारी मदद करूँगा इसमें. तो फिर सर ने मुझे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एक 6th मंथ की वर्कशॉप होती है, संडे क्लब थिएटर इन एजुकेशन डिपार्टमेंट है वहाँ पे. तो मैंने वहाँ पे 6 मंथ की वर्कशॉप की थी. देन हमारा प्ले हुआ था 2017 में 8th ऑफ जनवरी को. उसके बाद फिर थोड़ा गैप आ गया था मेरी लाइफ में कि उसके नेक्स्ट सेशन के लिए मुझे वेट करना था थोड़ा, लेकिन मुझसे वो वेट नहीं हो रहा था. तो मैंने सर को फिर कांटेक्ट किया कि सर मैं थोड़ा मतलब अनईजी फील कर रहा हूँ.
मतलब अजीब सा फील कर रहा हूँ, मुझे कुछ करना है लेकिन मैं खाली खाली फील कर रहा हूँ। तो फिर सर ने मेरी एक और हेल्प की थी कि सर ने एक थिएटर ग्रुप है, द फिल्म्स एंड थिएटर सोसाइटी, तो सर ने मुझे उनसे ज्वाइन करवाया और मैं उनसे अभी तक ज्वाइन हूँ। मैंने उनके साथ तकरीबन 10 से 12 शो एज एन एक्टर किए हैं और मैंने अबव 50 शो एज एन प्रोडक्शन असिस्टेंट किए हैं उनके साथ। एंड आई ट्रेवल्ड ऑल ओवर इंडिया विद देम, so I enjoyed my line basically. Okay. Wow. Uh, Yes, it has certainly transformed your life, and you found your inner calling, what you want to do. yes, yes, So ma'am. it's really good. Pukhraj, would you like to add here anything? वेल सर पुखराज ने कुछ नहीं किया. आई थिंक इट वाज ऑल मेंट टू बी, बिकॉज मैंने इसकी खाली फोटो ग्रुप्स में डाली और लोगों को कहा कैन पीपल असिस्ट. एंड इन दिस 8 years ऑफ डीलिंग विद पेशेंट्स खाली एक चीज रियलाइज की है, पीपल आर वेरी काइंड. तो कहीं ना कहीं से मैं जानता भी नहीं हूँ, somebody made him join this acting group, then the national school. So all I'll say is, and मैं देवांश का एग्जाम्पल देता हूँ, बिकॉज जब हमारे को कैंसर होता है तो हम दुनिया में लॉस्ट हो जाते हैं, हम घबरा जाते हैं, हम शॉक में रहते हैं. और इस टाइम ही है जब आपको कोई सहारा चाहिए या कोई कंफर्ट लेवल चाहिए, कोई चाहिए, यस आई एम देयर एज अ फ्रेंड, आई एम देयर टू सपोर्ट यू, टू गाइड यू, टू इंस्पायर यू. जब ये चीज होती है तभी आपको जाके लाइफ में, तभी जाके आपको थोड़ा, जब आपको मकसद मिल जाता है. बेसिकली क्या हुआ, मुझे लगता है देवांश कैसे ठीक हुआ, ऑफ कोर्स कीमो, डॉक्टर, एवरीथिंग हेल्प. इसके अलावा तुम्हारा माइंड सेट भी तो होना चाहिए. जब आपको जिंदगी में मकसद मिल जाए जीने के लिए, दैट विल मेक ऑल द डिफरेंस. ही फाउंड हिज पर्पस थ्रू एक्टिंग. सो ऑल ऑफ अस व्हेन वी आर लॉस्ट इन अ लाइफ, दैट इज द टाइम अंदर झांक के देखो कि हमारे को क्या एक्साइट करता है besides business or besides work. And this is how I like to I got Devansh on board to share how important it is, the play of the mind in recovering. Right. So Devansh, आपको आपका जो ये cancer is one phase of your life, and second is the drama acting where you know begin your another journey. So Yes. I'm sure certainly drama must have helped you in your recovery, in your going through that phase of cancer, right? Yes, ma'am. Okay, so what was the difference between before and after, before you started acting? तो उससे पहले क्या था कि मतलब मैंने थोड़े बहुत या थोड़े ज्यादा लोग देखे अपनी लाइफ में कि जो कि कैंसर को एक वैसी बीमारी मानते हैं कि उनको लगता है कि ये छूने से बैठ फैलती है और या उसके नियर बाय रहने से फैलती है. तो मैंने इसी वजह से अपने कुछ एक दो हाँ थोड़े बहुत फ्रेंड्स खोए हैं क्योंकि वो मुझसे दूर हो रहे थे. तो मैं कहा ठीक है. तो मैं उस पॉइंट से मैं फिर अपने ऊपर ज्यादा ध्यान देने लग गया था कि ठीक है, अगर उन्हें नहीं बात करनी कोई नहीं, मैं अपने लिए मतलब मैं खुद अपने लिए काफी हूँ. मैंने तब ये सोच लिया था, तो मैं किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं था इतना. तो जब मैं थिएटर ज्वाइन किया उसके बाद बहुत से मतलब ऐसे लोग भी मिले जो कि इस चीज को सपोर्ट करते हैं और उनके अंदर थोड़े है सपोर्टिव. तो बहुत चेंज आया था मेरे अंदर, कॉन्फिडेंस लेवल अप हुआ है. और मतलब एक कहते हैं कि एक आपका आई गॉट नो टर्म, मतलब बेसिकली जो आपका एक टीनेजर से आप ऊपर उठते हो, तो वो चीज मेरी उसी टाइम पीरियड के अंदर आ गई थी कि मेजर सॉरी आई गॉट मेरी उसी टाइम पीरियड में आ गई थी. मैंने उससे मतलब बहुत चेंजेस देखे अपने अंदर. आई now I confidently deal with a random guy. Okay. Wow. Okay. So आपका certainly confidence भी boost हुआ उससे. Yes. And all right. आपका treatment का duration कितना था? ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन तो एक्चुअली थेरेपी मेरी 2016 से पहले ही बंद हो गई थी. देन उसके बाद मुझे ईयरली चेकअप के लिए, फॉलोअप के लिए जाना होता है. Right. दैट्स ऑल. मतलब बेसिकली अराउंड 2 or 3 months मैक्सिमम. Okay. और आपको लगता है किसी भी तरीके से कैंसर ने आपकी प्रोफेशनल या पर्सनल जर्नी को इम्पैक्ट किया है? लगता प्रोफेशनल है देख के, बट हाँ. प्रोफेशनल तो नहीं, बट हाँ पर्सनल लाइफ में तो थोड़ा बहुत किया है. ओके. एंड आई सी ओनली पॉजिटिविटी, चाहे वो पर्सनल हो चाहे प्रोफेशनल हो या फिर वो स्टडीज हो.
So I can see, you know, how it has made you more mature. Like you were looking for this term, right? कि कैंसर ने Yes. कैसे आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है. So why don't we, you know, आप हमें एक डायलॉग सुनाएंगे जो आपकी एक्टिंग से आपने सीखा है कैंसर के. Actually, I don't have any Anything, typically anything dialogue. is fine. Yeah, I played maximum mime acting, you know. There is no dialogue in that. Only the actions and actions will confirm. So I will send you. No, don't send me. हमें यहीं पे देखना है. Yeah, I don't have any typical. We'll come back to this. तब तक आप सोच के रखना आपको क्या बोलना है. Okay. Yeah. So what was your biggest learning? आपके सबसे important बड़ा learning क्या था इस journey से? Important learning मेरा यही था कि अपने ऊपर, मतलब मैं पहले क्या करता था कि दूसरों से बहुत ज्यादा इंटरेक्ट रहता था. मतलब मैं अपने ऊपर इतना ध्यान नहीं देता था कि मैं चल अगर फ्रेंड्स के साथ हूँ तो बस अच्छा तेरे लिए ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, मतलब उसी के बारे में उसी के लिए प्लानिंग करते थे हम. तो इससे मुझे ये मिला कि अगर जब से मैंने अपने ऊपर प्लानिंग करनी शुरू की है कि व्हाट आई वांट एंड व्हाट आई कैन डू, तो उससे ये हुआ है कि मेरा एक अपने अंदर मुझे बहुत सारी चीजें पता चली हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे क्या चाहिए या मैं क्या नहीं कर सकता, और मैं उस चीज को कैसे कैसे उस चीज को सही करूँ, करेक्ट करूँ, उसे करने के लिए किस तरीके से मैं उसे कर सकता हूँ. तो वो चीज है कि मैंने अपने ढूंढी है अपने अंदर. Okay. Wonderful. Thank you for sharing that. And आप जब उस जर्नी से निकल रहे थे, I'm sure आपके पेरेंट्स के लिए भी बहुत डिफिकल्ट टाइम रहा होगा ये. So यस मैम. आप कुछ शेयर करना चाहेंगे उनके बारे में? हाँ, पेरेंट्स का तो मेरा पूरा सपोर्ट था एक्चुअली. तब भी जब मैं सरवाइव कर रहा था, और अब तब भी जब मैंने ये लाइन चूज की थी एक्टिंग की, दोनों टाइम उनका पूरा सपोर्ट था. एंड कभी ऐसा लगा नहीं कि मतलब ऐसा कुछ है नहीं. उनकी लाइफ में भी इम्पैक्ट पड़ा है, नो. वो मतलब थोड़े बेचैन रहते थे, मेरे लिए परेशान रहते थे, वो देखा था हमने. बट वही है कि कोई किसी को बोलता नहीं है. वही बात है. तो देख के ही पता लग जाता है. तो उन्होंने जितना किया था, आई रिस्पेक्ट देम. तो मैं भी ये चाहता हूँ कि मैं अपनी लाइफ में उनको उतने उससे ज्यादा कहीं ज्यादा उनको करके दूं. Very true. Very true. Wow. डेफिनेटली पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है पूरी जर्नी में, रिकवरी में. और हम लोग कई बार वंडर करते हैं कि चाइल्डहुड कैंसर जब होता है तो बच्चों से ज़्यादा आई थिंक पेरेंट्स को काउंसलिंग की ज़रूरत होती है. सो दे गो थ्रू अ लॉट. हाँ. सो यस. ग्रेट. थैंक यू फॉर शेयरिंग. पुखराज, इज क्रिश हियर? Sorry? इज क्रिश हियर? No, Krish is stuck. He'll join in later. उसका कोई Got it. emergency आ गया. ठीक है. Ravi is here. Ravi is here. Hi Ravi. हेलो. Hi, how are you? I'm fine. आप सब कैसे हो? हम सब एकदम बढ़िया हैं. So, रवि प्लीज आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए. आपको जब आप 12 साल के थे तब डायग्नोज हुआ था, राइट? हाँ जी. बहुत ही ज्यादा. हाँ. हाँ, तो वही मैं सोच रहा हूँ. मतलब बहुत कुछ है. मतलब वो 2 साल की जर्नी, मतलब बहुत उतार चढ़ाव लाइफ में बहुत आए हुए हैं. तो स्टार्टिंग जब हुई थी लाइक स्कूल में, मतलब कमजोरी आने लगी. फुटबॉल खेलना बहुत पसंद था, बट जब भी मतलब खेलने जाता था कमजोरी की वजह से गिर जाता था. तो कुछ पता नहीं चला, ना घर वालों को बताया था कि मुझे कुछ हो रहा है. तो ऐसी फरवरी से लेके फेब तक कुछ किसी को कुछ नहीं बताया. जो भी हो रहा था मैं अपने आप को देख रहा था, दवाई ववाई खा रहा था, बट कुछ नहीं हुआ. बट मई में जाके मुझे फीवर आना स्टार्ट हो गया. इतना फीवर आया, हर रात को दवाई खाता था, थोड़ी देर उतरता था फिर चढ़ जाता था. बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, बट दवाई कुछ काम ही नहीं कर रही. फिर हम लोग सफदरजंग शिफ्ट हुए. सफदरजंग में गए तो बहुत मुश्किल से बेड मिला. वहां पे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था, क्योंकि एक बेड पे 2-2 बंदे लेटे हुए थे. तो एक रात तो हमने ऐसे बिताई. फिर अगले दिन जाके हमें वार्ड में शिफ्ट किया. तो डॉक्टर्स ने हर तरह का टेस्ट कर लिया मेरे ऊपर सारा. मतलब बॉडी में ब्लड भी नहीं था मेरे, और मेरी एक पैर पूरी सूज चुकी. फिर भी मतलब अंदर ना, मतलब क्यूरियोसिटी होती है दूसरे लोगों को देखने में, जानने में. तो क्या होता था, जब मम्मी वगैरह जब दवाई वगैरह लेने जाती थी
तो बाहर व्हील चेयर होती थी, तो मैं उठता था और उस पर बैठ के पूरा वार्ड का राउंड मारता था कि वहां पे हो क्या रहा है। तो मम्मी के आने से पहले पहले आके मैं बैठ जाता था। तो मुझे तो पता नहीं था उस एज में कि मुझे क्या हो रहा है, बस मैं उठता था, दवाई ववाई खाता था, सो जाता था, बस इतना होश रहता था। तो एक दिन मेरे डॉक्टर ने कैंसर का टेस्ट किया, तो उसमें पता चला कि कैंसर है मुझे। तो मेरे पापा को बताया उन्होंने, बट मुझे जब उन्होंने बताया कि कैंसर है तो मैं तो सोच रहा था कि कैंसर है, कुछ नई तरीके की बीमारी है, तो मैं फेमस हो जाऊंगा। तो ये चीज थॉट में थी मेरे, बट मुझे ये नहीं पता था ये बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत लोगों को हो रखी है। तो हम लोग सफदरजंग से हमें एम्स में शिफ्ट किया हुआ। तो हम पूरे दिन दोपहर में वहां पे थे वार्ड में। तो हमारी बारी आई, तो जो भी रिपोर्ट वगैरह थी मम्मी पापा ने डॉक्टर को दिखाई। तो डॉक्टर ने साफ मना कर दिया, आप इसको क्यों लेके आए हो, ये तो लाश है, ये तो मर जाएगा, अगर मर जाएगा तो आप हमें ब्लेम करोगे कि हमने मार दिया। तो बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद डॉक्टर माने। उन्होंने बोला कि आपको 4 ब्लड यूनिट लाना पड़ेगा। तो मम्मी पापा का तो हेल्थ ऐसा नहीं था कि वो ब्लड दे सके, बट कहीं से मेरी बुआ की लड़की के ऑफिस से लोग आए थे, वो उन्होंने ब्लड दिया। उनको तो हम जानते भी नहीं थी, बट उन्होंने हमारी हेल्प करी। फिर शाम को हमें वार्ड इमरजेंसी में शिफ्ट किया, और इमरजेंसी के टाइम से जब रात में 10-11 बजे जब मुझे वार्ड में शिफ्ट कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि अभी मेरी मतलब अभी हूँ और शायद अब चला जाऊंगा, तो ये वाली फीलिंग आ रही थी। मतलब अब लग रहा था कि अब शायद मैं मर जाऊंगा, ऐसा फील आ रहा था मेरे को। बट रात में फिर मुझे ब्लड वगैरह चढ़ा, ग्लूकोज वगैरह चढ़ा, तो फिर सुबह थोड़ा रिफ्रेश फील हुआ। मम्मी ने बोला जा नहा ले, तो मैं उठ के थोड़ा नहाया वहाया, तो सामने देखा वार्ड पे टीवी है। टीवी देख के तो अब डिस्कवरी चैनल का बहुत बड़ा फैन था, वहां जाके बैठ के मैं डिस्कवरी चैनल लगा के बैठ के देखने लगा। तो डॉक्टर आते हैं ऐसी चेकअप, रेगुलर चेकअप करने के लिए। तो मम्मी को पूछ रहे कि पेशेंट का है, तो मम्मी ने बोला ये इधर बैठा हुआ है टीवी पे देख रहा है। तो डॉक्टर बोल रहा है कल तो तू ऐसे आया था जैसे कि तू शायद बचेगा नहीं, बट तू अभी तो नॉर्मल बच्चों की तरह बैठा हुआ है। तो वो तो उस टाइम हंसी मजाक में निकल गया। बट फिर जब हमारा बोन मैरो हुआ, बोन मैरो में बहुत पेन होता है। उन्होंने मतलब एनेस्थीसिया वगैरह कुछ नहीं दिया, जब उन्होंने वो इंजेक्शन मेरे अंदर स्पाइन में डाला तो बहुत पेन हुआ, मैं 1-2 घंटा बहुत तेज तेज रोया। फिर हमें शिफ्ट कर दिया गया, मतलब दूसरे दिन हमें घर भेज दिया कि अब तुम्हारे रेगुलर आना पड़ेगा, अप एंड डाउन। तो यही ट्रीटमेंट चलता रहा, आना जाना। तो फिर मतलब मुझे तो पता नहीं था कि कैंसर क्या चीज है, बट मेरे घर वालों को, खुद के घर वाले बोलते थे कि इसका सामान अलग रखो, इसको थोड़ा दूर रखो, तो मे भी कैंसर हो जाएगा। बट मम्मी पापा कहाँ हम अपने बच्चों को अपने से दूर रख सकते हैं। तो उन लोगों ने उनकी सुनी और उनको बोल दिया कि आप अगर आप ऐसी सोच रखते हो कि हमारा बच्चा बचेगा नहीं, तो घर मत आना आप हमारे। तो ये चीज छोड़ दी। बट रातों में ना मुझे डर लगता था कि अगर मैं सोऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, तो मैं रातों को सोता नहीं था। तो क्या हुआ, एक दिन रात में मैंने ये चीज नोटिस करी, मेरी मम्मी रो रही थी और पापा भी थे। तो वो लोग एक बात कर रहे थे कि हम लोग इसका ट्रीटमेंट का खर्चा नहीं उठा पाएंगे, तो हम एक काम करते हैं, खाने में जहर डाल के चारों मर जाते हैं। तो ये चीज सुन के ना मुझे बहुत उदास सैड फील हुआ। अभी भी वो सब चीजें सोच के ना थोड़ी सब कुछ गूज बम्स याद आते हैं। एक मिनट बस। बिल्कुल, क्योंकि ये टेक योर टाइम। ऐसा हम लोग 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं यहाँ पे, टेक योर नहीं टाइम। नहीं, कोई नहीं, क्योंकि ऐसा था तो मेरे पापा, goosebumps मेरे को आ रहे थे। क्योंकि ऐसा था कि मेरे पापा हार्ट पेशेंट थे। भाई जब 3 साल का था तब वो छत से गिर गया था, तो उसे हर रात मतलब कभी बीच में हर वीक में मिर्गी वगैरह आती थी। तो उस चीज को लेके मम्मी पापा भी परेशान थे। तो उस दिन मैंने सोचा था कि चलो मेरे पास जितना भी टाइम है मैं अपने मम्मी पापा को खुश रखूंगा। तो उनको मैं मतलब जैसी भी आड़ी टेढ़ी हरकतें करके उनको हंसाता रहता था। मेरे पास अभी ना यहाँ पे एक फोटो भी है मेरी, जब मैं उनको हंसाया करता था उन सब अपनी चीजों से, मैं आप लोगों को दिखता हूँ। लाइक मम्मी का सूट पहन के उनके सामने एक लड़की की तरह घूमता था कि वो लोग खुश हो। क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं कैसे रहूंगा, कब तक जिंदा रहूंगा। बट ठीक है, ट्रीटमेंट चलता रहा। हाँ, अपने आप को संभाला थोड़ा। फिर वहां पे जो बच्चे होते थे, अब जो चीज मेरे साथ गुजर रही है वो चीज उनके साथ भी होती है। कोई किसी से बात नहीं करता, सब अपनी दुनिया में चुपचाप गुमशुदा, सबका बचपन खो गया।
अब मैं कोशिश कर रहा था कि चलो यार थोड़ा बात करके देखते हैं किसी ना किसी से, तो किसी से बात करने जाओ तो एंगर इश्यू बहुत होता है इस टाइम पे। तो किसी बच्चे ने मेरे को थप्पड़ मार दिया। अब मैं भी पेशेंट, वो भी पेशेंट, क्या करें, छोड़ो। फिर धीरे धीरे जब ट्रीटमेंट मैं ठीक होता रहा, तो मैंने बहुत सारे दोस्त दोस्त बनाए वहां पे पेशेंट होते हुए। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, जो दिवांश है वो भी मेरा दोस्त है, कृष्णा है वो भी मेरा दोस्त है, ये सब मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, पुखराज सर भी दोस्त हैं। तो पुखराज सर से जब मैं मिला ना, तो मुझे पता नहीं था पहले कि कैन सपोर्ट कोई ऑर्गेनाइजेशन है। तो वहां पे गया, वहां पे बहुत सारे दोस्त मिले, बहुत सारे लोग मिले, उनसे मैं मिला, उनके साथ घुला मिला, दोस्त बने हम लोग सारे, मतलब पेशेंट पेशेंट हम लोग जब थर्सडे थर्सडे को मिलते थे, पहले तो पुखराज सर के साथ मिलके 1-2 घंटे गप्पे मारे, किसी चीज टॉपिक पे बातें करी। फिर जब वो सेशन खत्म हो गया, जब हम वापस हॉस्पिटल आए, हम सब ग्रुप बना के कहीं घूमने चले जाते थे। तो वो चीज मेरे अंदर थी कि चलो यार, क्योंकि बड़े अपनी फीलिंग एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, बट जो बच्चे हैं वो अपनी फीलिंग किसी के साथ कैसे शेयर करेंगे, क्योंकि कोई समझेगा ही नहीं। बच्चों की फीलिंग बच्चे ही समझ सकते हैं। तो वो चीज हमने समझी, हम लोगों ने उनके साथ ग्रुप बनाया है, क्योंकि हम जब वो हमारे साथ होते तो वो हमको फेस करके सोचते थे कि चल यार ये बंदा भी ठीक हो गया तो मैं भी ठीक हो जाऊंगा, एक हौसला मिलता था उन लोगों को। तो ये चीज सोच के चलते रहे। तो मुझे ना रैप सॉन्ग सुनना बहुत पसंद था। तो उस टाइम पे ना हनी सिंह का एक रैप आया था जो मुझे बहुत मोटिवेट करता था, तो मैं वो आप लोगों को सुनाना चाहूंगा। बिल्कुल। ठीक है। नामुमकिन जैसी कोई भी चीज नहीं, जो खुद ना बने वो कोई भी नसीब नहीं, मिलेगी मंजिल चाहे करीब नहीं, मैं हूँ दिल का अमीर भाई गरीब नहीं, कोई भी लकीर नहीं ऐसी जो कह दे तुझे तेरी तकदीर नहीं, अगर हुई तेरी हार तो मान ले ये बात, बंदे तू ही जिम्मेदार कोई और नहीं। हाँ हाँ, कहते हैं रीत यही, नए जमाने की है देखो नई रीत यही, जो कुछ चाहेगा तू वो भी पा जाएगा तू, जीत होगी तेरी कर खुद पे यकीन। हाँ, पानी हो कम कंकड़ से निकाल, एड़ी का पसीना अपने सुर से निकाल, बंद कर बातचीत अब रात कहीं भी, तेरे सामने सवेरा तेरे सामने है जीत, जीत होगी तेरी जीत। हाँ हाँ तेरी जीत। पंजाबी में टिक टिक घड़ी कहती आ गया समा, उठ भी जवाना कुछ करके बखा, ले ले अपनी तू था नाम अपना बना, एवे गड्डियां च घूम के तू जिंद ना गवा। हाँ असी भी है अपना, आप बनाई कैसे हारी बाजी जीते, साडे वीर ने सिखाया। हाँ, नाम बनाया नाल पैसा भी कमाया, लोकी कर देने गल्ला आप करके वखाया, मापिया दा नाम चमका दे, छा जा बई छा जा तू दुनिया हिला दे, मिट्टी नू भी हाथ लावा बन जा दे सोना, so get to shine on people, come on now, I got it all, got a bling bling, I don't have any crown but still I'm the king, बाबा जी दी मेर होवे करी जा तू मेनता, जीत होगी तेरे बंदे बंदे या तू वेखी जा। थैंक यू सो मच। Wow. Amazing, amazing. So Dimple, if I can add, Mm-hmm. Ravi comes every once a week. हमारा एक डे केयर होता है where I have 40-50 teenagers all suffering from cancer, recovered from cancer, और रवि को 6-7 साल हो गए हैं, and he comes every week. So he even misses his school to come. तो ऐसे तू ठीक हो गया है, ये यूजुअली है जो बच्चे अभी बीमार हुए हैं, इतने साल हो गए तू ठीक हो गया, तू क्यों आता है? I actually was curious कि बच्चे यहाँ क्यों वापस आ रही है, ये तो ठीक हो चुके हैं. They said no. They said जो मेरे साथ बीत चुकी है, I have to be there for the others. So this is how important it is. It's been 6-7 साल हो गए आई थिंक रवि को आते हुए, हमारे डे केयर में ठीक हो गया, 5 साल हो गए ठीक हुए, बट he makes it a point to come and ये रैप हर वक्त करता है, डांस भी करता है. So you know जो बच्चा बीमार नया हुआ है और उसके सामने ऐसा आ जाए सर्वाइवर, you can imagine अगले में कितनी जान आ जाती है कि यार I can also do this. Definitely, So, definitely. I'm sure the kind of feeling I'm having right now, full of joy, positivity. I'm sure सब लोग ऐसे ही feel कर रहे होंगे. और रवि, hats off to your journey, your courage, and I mean आपने जो भी share किया, it was very touching, very emotional, and I mean आप बहुत छोटे हो एज में, लेकिन आपकी maturity बहुत अलग level पे है. So thank you for sharing your experience, Ravi. It means a lot. And I'm sure that patients जो उस जर्नी से निकल रहे हैं,
they learn a lot and will get inspired from you because जब आप ठीक हो सकते हो तो वो भी हो सकते हैं, जब आप इस जर्नी को इतना पॉजिटिविटी से ले सकते हो तो वो भी ले सकते हैं, and you're an inspiration for all of us. Yeah. So Dimple, I'll share one more thing. I'll share a video in your group. There are 9 children who are dancing. सब रवि ने organize किया था. It's a 2-minute dance they did. I had a mailer for them. All 9 are survivors of different cancers, from eye cancer to osteosarcoma. So it's such a thrilling feeling to see 9 children all अलग-अलग cancer के dance कर रही है. So I'll share that. Definitely. Thank you. रवि, मुझे आपसे I wanted to ask you this कि आप you had cancer when you were very young और अभी आप बाकी बच्चों को मदद करते हो, और when you see जो बड़े लोग होते हैं उनको कैंसर होता है, right? People who are in 30s, 40s, 50s. So do you see any difference कि वो लोग, how do you see them, and how when you work with kids, what is your experience? कैसे बताऊं, अब जो बड़े लोग हैं ना वो ना थोड़े ना नारियल की तरह होते हैं, वो ना थोड़े सख्त से होते हैं, तो उनको ना तोड़ना पड़ता है। और बच्चे जो होते हैं एकदम सॉफ्ट होते हैं, तो उनको अगर कोई बच्चा बच्चे के साथ मिलेगा तो वो खुल के अपनी लाइफ जीता है। अगर किसी हम एज बंदे के साथ जाएंगे तो वो मेच्योरिटी पहले अपना दिखाएगा कि यार मैं बड़ा हूँ, मुझे ऐसे बच्चों वाली हरकतें नहीं करनी चाहिए। बट हर बड़े इंसान के अंदर एक दिल होता है, वो बच्चा होता है, वो बच्चा हमेशा जवान रहता है, बस उस बच्चे को हमें खिलाना होता है बस। Wow. Yeah, very true. Thank you. Right. अभी आपके पेरेंट्स कैसे हैं? सब ठीक है। Okay. आपकी बकेट लिस्ट में anything that is in your bucket list that you want to do? अभी तो कुछ नहीं है, मैंने रैप कर दिया है आप लोगों के लिए। Okay, and what is the one thing you are very grateful for? ये आपकी पूरी जर्नी से किस चीज के लिए बहुत ज्यादा grateful है? कि मुझे कैंसर हुआ, क्योंकि अगर मुझे कैंसर नहीं होता तो मेरे अंदर ही कॉन्फिडेंस नहीं आता, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता तो मैं दूसरे बच्चों के साथ ऐसे मिलता नहीं, ना उनको मोटिवेट करता, ना मुझे इन सब के बारे में पता चलता। नहीं तो फिर मैं एक नॉर्मल लड़की की तरह शांति से अपने घर पे बैठा हूँ, काम करके चुपचाप निकलते जा रहा हूँ। क्योंकि जो मैं पहले था ना वो बहुत शांत बच्चा था, किसी से भी ज्यादा कुछ बोलना नहीं था। बट अभी मैं हाइपर एक्टिव, जिससे भी बात करवाना हो कर लूंगा, जिस चीज पे भी टॉपिक हो बस शुरू हो जाएंगे। तो मैं ग्रेटफुल हूँ कि हाँ लाइफ में कैंसर आया, मुझे नई नई चीजें सीखने को मिली, नए लोगों से मिला, नया तजुर्बा मिला, तो उसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। So you see cancer as a blessing in your life? Yes. Okay. And when you used to get angry, जैसे आपने बताया कि anger issues होते हैं और some situation that you don't like, आप उससे अपने आप को कैसे बाहर निकालते थे? Like जब मुझे गुस्सा आता था तो मैं जस्ट, मेरी साइकिल होती थी, मैं अपने कानों में हेडफोन्स लगा के साइकिलिंग करने निकल जाता था, तो उससे मेरा गुस्सा भी शांत हो जाता था और मैं थोड़ा फिटनेस भी हो जाता था। Okay, right. And what is your next thing? What do you want to do? मैं ना सोचता नहीं, क्योंकि मैं जो सोचता हूँ ना वो कभी होता नहीं है। तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ था, लाइक जस्ट मैंने सोचा था मैं होटल लाइंस में जाऊंगा, होटल लाइंस का सब कुछ कर लिया, कोर्स वगैरह सब कर लिया। बट जब प्लेसमेंट की बारी आई तो पता नहीं क्या माइंड में आया, मैं शिफ्ट हो गया, मैंने एनजीओ सेक्टर में चला गया, वापस कैनकेज में चला गया, वहां पे मैं फंड रेज करने के उस पे चला गया। बट 3 महीने बाद क्या हुआ, लॉकडाउन हो गया, सब होटल मैनेजमेंट सब बंद। तो मैं कुछ चीजें ना आजकल प्लान नहीं करता हूँ, क्योंकि जब भी मैं कुछ सोचता हूँ कि मेरे को ये करना है वो होता ही नहीं मेरे से, तो इसलिए मैं सोचता नहीं, अपनी लाइफ को जैसे वो फ्लो के साथ बहते जाओ बहते जाओ बहते जाओ, तो मैं बस उसकी तरह बहता जाता हूँ। Going with the flow. Yes. Wonderful. What is that message that you want to tell to other people who are going through this journey? उनको आपका क्या मैसेज है? बड़ों के लिए अलग मैसेज और बच्चों के लिए अलग मैसेज। अरे अब वो कैसे बताऊं, अब छोटे बच्चों के लिए, अब छोटे बच्चों के लिए कैसे बोलो मैं, देखो जब छोटे जो बच्चे होते हैं ना, जब बीमार होते तो मतलब वो अलग ही, मतलब जब उनके हाथों से जो अनमोल चीज जब छिन जाती है, उनके दोस्त वगैरह उनसे दूर हो जाते हैं, क्योंकि हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है बहुत लो होता है उस टाइम पे, तो डॉक्टर मना करता है कहीं भी बाहर नहीं जा सकते, खेलने नहीं जा सकते। बट वो जो चीज है वो 2 साल का कुछ पीरियड है, उस साल पे हमें बस थोड़ा
मेहनत करना है, बस अपने दिल को खुश रखना है, कार्टून देखो, दोस्तों से फोन पे बात करो, अगर बाहर भी जाना है तो थोड़ा मास्क वगैरह लगा के अच्छे से अपने आप को सैनिटाइज करके जा सकते हैं। बट मेन बात ये है, चाहे बड़ा हो या छोटा, अगर हम नेगेटिव थॉट्स अपनी लाइफ में लाएंगे तो नेगेटिव चीज हमारे अंदर आती जाएगी। अगर हम पॉजिटिव चीजें सोचेंगे तो हम, हमारा जो ऑरा है वो भी पॉजिटिवनेस से भरेगा और हमारी सोच भी पॉजिटिवनेस से ही भरेगी। तो हमें उल्टा सीधा नहीं सोचना, सिर्फ पॉजिटिव थॉट हमें रखने हैं। Right. Very true. Thank you for sharing, Ravi. Yeah, very insightful. Yeah, would like to hear from Divya now. Hey Divya. Hi, Hi, how are you? I'm good. How are you? Good too. So मैं आपका कैंसर भी चाइल्डहुड कैंसर में काउंट करती हूँ. So this goes for you also. Always good to see you, Divya. So and you know, as Ravi said that cancer is a blessing, and that reminded me of you because you also say that it has come as a blessing in your life. So what is the one thing that you are grateful for? I am also grateful for cancer. और मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि looking on the other side, I say that cancer is the best thing that happened to me. Because उन्हें पूरी life change कर दी है और I think better कर दी है. Right. So I'm grateful for cancer. Right. And what is the one thing in your bucket list? Now one thing in the bucket list to just travel to around nature. Because बहुत टाइम हो गया लॉकडाउन का, और उससे पहले भी जस्ट कैंसर जर्नी शुरू हुई थी 2017 में, एंड देन आई वाज एट होम, और जब बाहर जाने का सोचा तो लॉकडाउन हो गया और उसके बाद जाना ही नहीं हुआ. सो आई मिस ट्रैवलिंग. Okay. Right. Any act of kindness that you will never forget? ऐसे तो बहुत सारे हैं, बट एक है, हाँ, बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग मिले, सबने बहुत हेल्प किया, और मे बी उनकी ब्लेसिंग और सपोर्ट है कि आज मैं यहाँ पर आ गई हूँ. बट एक था, जब मैं वेंटिलेटर पे थी, आईसीयू में थी, तो एक अंकल थे और उनके बेटे को कैंसर था, आई थिंक ब्रेन कैंसर था, और वो उनका इकलौता बेटा था, और वो कोमा में चला गया था, और डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि है ना, आई थिंक वी थिंक ही माइट नॉट बी हियर विथ यू एनी मोर. तो वो अंकल भी खुद बहुत सारी चीजों से निकल रहे होंगे, उनकी इमोशनल मेंटल स्टेट भी बहुत अलग होगी, बट स्टिल वो मेरे पास आते थे, मुझे बोलते थे कि ये मेरी बेटी है, और मुझे है ना मोटिवेट करते थे कि है ना, आप कुछ सोचो मत और आप जल्दी से बाहर निकल जाओगे. मतलब उनकी आंखों में आंसू होते थे, और फिर भी वो स्माइल से मुझे मोटिवेट करते थे कि है ना, आप जल्दी निकल जाओगे, और मेरे लिए प्रे करते थे. तो दैट वाज द थिंग दैट रियली टच्ड माय हार्ट. और एक और था जो मुझे मतलब याद नहीं है, मेरे बर्थडे पे लाइक आई हैड कन्वल्जन्स एंड आई वाज ऑन वेंटिलेटर. तो एक सर्वाइवर थे, उन्हें 5 साल तक सर्वाइव कर दिया था, एंड ही गॉट रिलैप्स्ड, और वो भी फिर आईसीयू में एडमिट थे, और उन्होंने मेरे बर्थडे के दिन गाना गाया था, जो मुझे याद नहीं है बिकॉज मैं उस स्टेट में नहीं थी, कि मैं अनकॉन्शियस थी उस टाइम. तो उन्होंने मुझे मेरे लिए गाना गाया था कि तुम जियो हजारों साल एंड ऑल, और ही एक्सपायर्ड. और उसके बाद उनकी फैमिली ने हमारा कांटेक्ट ढूंढ के हमें इन्फॉर्म किया कि है ना, आप ऐसे ऐसे चीजें मत करना, ये मत करना, ये जो मिस्टेक्स ये हमने की, आप मत करना. तो उनकी मतलब जो बड़ी बहन थी और मम्मी थी, उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हुआ कि जहाँ उनके बेटा एक्सपायर हुए हैं, वहां पर फिर से जाना और किसी और का कांटेक्ट ढूंढना जिसको आप बिल्कुल नहीं जानते हो, सिर्फ एक बार मिले हो. तो दैट वाज द बिगेस्ट थिंग आई थिंक. Yeah, very true. Thank you. And for you, what was the relaxation activities when you were going through that phase? जब आपको भी कभी frustration हो रही है, गुस्सा आ रहा है. So what helped you in calm down from that situation? I think writing always helped me, and उसके बाद फिर पेंटिंग एंड क्विलिंग. मैं बहुत टाइम तक पेंटिंग और क्विलिंग करती रहती हूँ, और मुझे ऐसे बोर्ड जैसा कुछ फील नहीं होता है, लाइक बहुत रिलैक्स फील होता है. मेरा भाई बोलता था कि आप दीदी, आप घंटों तक पेपर बस फोल्ड करते रहते हो, पेंटिंग करते रहते हो, आपको बोर नहीं होता क्या? मैं बोलती कि नहीं, बहुत ज्यादा रिलैक्स फील होता है इससे. Okay.
Very true. And what message you would want to share with others? Accept and make a great bond with yourself and be grateful for everything. Right. Divya, आपने you have worked with, talked to a lot of people, children who had cancer, and you've also talked to a lot of people like adults who had cancer, right? चाहे वो लोग 50 साल या 70 साल, caregivers also. So you have seen both phases. So what difference do you find? क्योंकि मेरे लिए it has been a very enlightening experience today talking to them, and I also talked to many other people. So what difference do you see? आई थिंक बहुत से जो बच्चे होते हैं वो इतना सोचते नहीं है इसके बारे में कि हाँ हमारा कोई ट्रीटमेंट चल रहा है और हम ले लेंगे और ठीक हो जाएंगे, उनके दिमाग में सिर्फ यही होता है और ये उन्हें बहुत ज्यादा हेल्प करता है. बट मोस्टली जो अडल्ट जिनको नॉलेज होती है कि कैंसर क्या है और जिनके दिमाग में फेयर होता है कि कैंसर बहुत ज्यादा डेडली डिजीज है एंड ऑल, तो उस वजह से ट्रीटमेंट का उनको इफेक्ट नहीं होता है, साइड इफेक्ट जितना उनको मेंटल फियर जो होता है उस वजह से वो बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं. So I think that is the main difference between adults and kids. Right, right. I was thinking on the similar lines. So thank you. Great. And what has been how has been your experience listening to Bharat, Devansh, and Ravi? It was amazing. मुझे हमेशा survivors की journey सुनना अच्छा लगता है. That how they have been through so much and faced so many things, but still वो इतना positive होके अपनी journey share करते हैं और हर चीज के लिए grateful होते हैं. और जो रवि ने कहा मैं उनसे बहुत ज्यादा कनेक्ट करी कि है ना, पेरेंट्स के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, उनके लिए ज्यादा डिफिकल्ट होता है. और सेम वाज विथ मी, मतलब कैंसर से पहले मेरा ऑपरेशन हुआ था, ओफ्रेक्टोमी, जहाँ मेरी राइट ओवरी निकाली थी. तो उस टाइम भी पापा डिप्रेशन में थे बिकॉज ऑफ ऑल द थिंग्स दैट society says that a woman is incomplete without her reproductive organs, and all those things made her like to go in depression. तो उस टाइम से वो बहुत मुश्किल से बाहर निकले थे. एंड देन शायद 1 साल ही हुआ था ऑपरेशन को. 2015 नवंबर में मेरा ऑपरेशन हुआ था एंड 2017 जनवरी में फिर से मैं कैंसर डायग्नोस हो गई थी. तो आई कुड जस्ट इमेजिन कि व्हाट दे माइट बी गोइंग थ्रू. सो कैंसर में फिर से वो डिप्रेशन में आ गए थे एंड देयर वाज लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग इन देयर माइंड. सो आई कुड रिलेट विद रवि. तो मैं बहुत सारी वियर्ड चीजें करती थी टू मेक देम हैप्पी एंड स्माइल. Right, thank you. Now we would like to hear from others. How has been their experience, starting from Pranabda? Oh, today's I am really speechless now. Today, your thanks to Dimple and others, because this is a new experience I have gained in today's healing circle, today's through talks, and what can I tell? This Robi, Devangs, and Bharat and you, Dibba. So one thing I can tell, I can ask, love yourself. If you love yourself, this love yourself means love myself. If this has come, so I can overcome any difficulties. I have found from Robi and Devangs also that after recovery, they have begun to love themselves and how to cope with the situation and how to transform the life pattern. One thing I can tell, I am sure, I agree with Dibba that there is a difference between the children's cancer and adult cancer. So children or teenagers, they don't know what is cancer. They don't know, they don't feel. And I admit Dibba's word that fear is not within the child, but within the adult. And that fear is the barrier for recovery sometimes, if they have no positivity. But positivity and love
And these are the incidents today. I salute Pukhraj Singh for bringing, for nurturing these children's survivor, and I am very much moved today with these stories, with these survivors, and I salute all these. I respect. Thank you. Thank you, Pranabda. Thank you. Their Thank you. journey is very inspiring, very amazing, and बच्चों Actually, का स्पेशलिटी है कि वो लोग चीजों को मजाक मजाक में पूरी जर्नी निकाल लेते हैं, इतना बड़ा नहीं बनाते किसी चीज का। yeah. And one thing, they are the inspirations. They are the inspirations to others, not to for the children, but for us also. For at this age also, this is great inspiration, I think so. And what you have arranged, it is a I can't tell anything. This is beyond appreciation. So I will not undermine you. Like Devansh is now in a theater group. So he is now involving himself, forgetting, not forgetting, but the cancer teaches us many things. Cancer teaches us, and patient is a teacher. And sometimes cancer is a gift to all of us, whether you see, survivors are to be hats off, but even he who couldn't survive his or her battle with the cancer teaches his or her near relative a lot of things, and how he or she has fought, he has combated, and that teaching is a gift to his or her spouse or near relatives. So I think the disease, especially cancer, is a teacher, and patient is a teacher, and survivors are also inspirations. And I'm actually, I can't tell, I am speechless today, listening by heart all the stories and all that. Thank you, Dimple. Thank you. Thank you. Not only Dimple, thank you, Rovi, thank you, Devang, thank you, Veta, thank you, Dibba. Okay. Thank you, Pranabji. Yeah, thank you. We'll hear from Anuradha Aunty. Hello, everyone. Hello. Thanks, Dimple, for organizing such a nice talk. आज के तीनों बच्चों से मिलकर के मतलब जीवन की एक नई रोशनी जिसको कहते हैं वो मिली, क्योंकि एक बार मैं बहुत पहले यहाँ पर भी एक कैंसर हॉस्पिटल में गई थी, तो वहाँ मैंने बहुत छोटे छोटे बच्चों को देखा था, कोई 3 साल का, कोई 1.5 साल, मतलब 2.5 साल के ऐसे। तो मैं सोचती थी कि ये बच्चे तो अपनी तकलीफ भी बता नहीं सकते हैं, तो कैसा इनका डायग्नोसिस होता होगा। तो फिर उनके पेरेंट्स से जब अपन मिलते हैं तो पता चलता है कि जैसे एक ने बताया था कि एक बच्चे ने चलना शुरू किया और फिर वो गिरने लगा था, तो उसके इन्वेस्टिगेशंस हुए। तो ऐसे ही मैं सोचती हूँ कि ये जब 3 साल का था तो इसके पेरेंट्स को इसको जब ब्लड कैंसर हुआ तो उसको डायग्नोसिस के लिए कितना मेहनत करनी पड़ी होगी। और जब बच्चे तकलीफ में होते हैं तो माता पिता को बहुत दुख होता है, मतलब वो उस चीज को शायद शेयर नहीं कर पाते किसी के साथ। पर इन तीनों की कहानी सुन के फिर मुझे ये लगा कि ईश्वर जिन लोगों को कैंसर देता है उनको शायद उनका जीवन बहुत सुंदर बनाने के लिए ये कैंसर दे देता है। तीनों ने अपने जीवन की दिशा कितने अच्छे तरीके से बदली है और आपको समझ में आता है कि आपको क्या करना है। तो जिसको एक्टिंग की फील्ड में जाना है या जो भी चीज, मतलब आप कंसेप्चुअली क्लियर हो गए
और आई एम सो हैप्पी कि तीनों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वुड लाइक टू सी कि आपके वीडियोस वगैरह शेयर करिएगा जिसमें आपने एक्ट किया है, ये सब चीजें की है, तो हम देख पाए, अप्रिशिएट कर पाए। आपसे डायलॉग की तो उम्मीद थी पर आपने दिया नहीं रवि। और रवि, आई वाज आल्सो टच्ड बाय स्टोरी। तीनों की स्टोरी बहुत अच्छी थी, इंस्पायरिंग थी, एंड कीप इट अप गाइस। थैंक यू। हम लोग अभी देवांश का डायलॉग सुनेंगे कुछ टाइम में, ही इज प्रिपेयरिंग इट। ओके ओके, वी आर वेटिंग। Yeah. Mehul, would you like to share? Hi, thank you, Dimple. Thank you, Pukraj-ji, for getting these brave people in the meeting today. But honestly, बहुत मजा आया। मतलब ऐसे लग रहा कि यार और कुछ दोस्त मिल गए। मैं भी ना एकदम बच्चा ही है, मतलब थोड़ा सा तुमसे बड़ा हूँ, but तो yeah, but What is the age? it was amazing. Sorry. Age क्या है? अरे अभी परसों 25th का बर्थडे मैंने मनाया है। So yeah, but your stories are amazing. It's good to to know people like you जो इतने कम उम्र में you've been through a lot and you've understood, you become mature in a very nice way and very fast. Like आपको समझ में आया कि लाइफ क्या है और कैसे इसको झेलना है. You are now fully equipped to face any problem in life. मतलब इससे बड़ा प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता. जो आपने कर गुजरा है ना, उससे कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं हो सकता. बाकी इसके आगे के सब प्रॉब्लम बहुत माइनर है, बहुत ट्राइफल है. और मैंने कुछ पॉइंट्स लिख के रखे थे जब आप लोग बात कर रहे थे. तो I like when you say लाइफ को कैसे झेलना है. अरे अभी तो शादी नहीं हुई ना आपकी, इसलिए आपको पता नहीं है. तो बाद में वो एक अलग प्रॉब्लम होता है. मतलब जाने दो, मेरी जाने दो. तो Bharat, I don't see him. I think he dropped off. But what I've heard him say, like he was not ready to share a few things about his personal thing. That's up to him. But मुझे ऐसा लगता है ना कि you should talk out. You should share. मतलब अगर आप बोलोगे नहीं तो बेचोगे कैसे ना. ऐसे वो एक कहावत कि आप अगर if you don't tell your problems, you won't get people to help you. भले आप 10 लोगों को बताओ तो 2 लोग तो आपको हेल्प करने आ ही जाएंगे. हमारे जैसे कोई ना कोई मिल ही जाएगा आपको. जैसे पुकरा जी आपने बात की तो है ना, आपको कितने सारे हेल्प कर दिया. तो ओपन अप एंड एनकरेज पीपल टू टॉक अबाउट कैंसर. दैट इज अ बिग प्रॉब्लम कि लोग ना बहुत झिझकते, छुपाते, बताते नहीं. तो उनको बताओ यार, मतलब पैसे कोई इट्स नॉट अ बिग डील है ना. मामूली डिजीज है, थोड़ा सा इधर उधर ट्रीटमेंट करना पड़ता है, बाकी हो जाएगा. सो स्प्रेड दैट इन यंगस्टर्स बेसिकली. और फिर बाद में रवि, आपने पॉजिटिविटी पे बहुत सारी अच्छी बातें की. मैं टोटली सब अग्री कर रहा था. मतलब आई कैन टेल यू कि आप जितना बोल रहे थे कि यू थिंक गुड, ना नेगेटिव बातें निकाल दो. बहुत सही, सब बहुत सही है. आपने जल्दी सीख लिया लाइफ में क्या करना चाहिए कि थिंक अबाउट गुड. पावर ऑफ अट्रैक्शन बहुत पावरफुल है, काम करता है. अच्छा सोचो, अच्छा मिलेगा आपको. और देवांश, कितने आदमी थे. तो मैं रुका हूँ तुम्हारे डायलॉग के लिए. एंड में आप अरे ये लोग मुझे गाना वाना गाने लगा था. आई एम अ स्टेज 4 थ्रोट कैंसर सर्वाइवर. मेरा एक वोकल कॉर्ड नहीं चलता, पर ये लोग छोड़ते नहीं है. ये लोग ना मुझे गाना भी गाने लगा है और मैं गाता हूँ. और दिव्या, मतलब शी इज माय बेस्ट फ्रेंड. तो उसके बारे में तो मतलब क्या बोलना. उसको देखता हूँ तो मेरा दिन अच्छा हो जाता. मेरा क्या, सबका. प्रणव जी बात करते तो अच्छा लगता है. सो दिस इज अ वेरी नाइस प्लेस. बट आई एम ग्लैड टू सी द यंगस्टर्स getting involved in this and spreading कि ये कोई मामूली. और भगवान जिसको देता है ना ऐसे तकलीफें, वो उसको पता होता है कि ये झेल सकता है. मतलब इट्स अ टेस्टिंग टाइम. हर एक को कैंसर नहीं होता. ओनली लकी वंस गेट कैंसर. कैंसर से मेरी लाइफ बहुत चेंज हो गई है. सबकी लाइफ चेंज हो गई और अच्छी हुई है. कैंसर आज अगर मुझे कैंसर नहीं होता तो मेरी तुम्हारी पहचान नहीं होती. सो टेक द गुड इन द बैड. मतलब हमेशा कोई भी बुरी चीज हो ना, तो उसमें से गुड थिंग क्या है वो निकालो. मतलब कल भी आई मीन मैंने कैंसर ग्रुप्स, तो एक वन लेडी हु वाज फाइटिंग कैंसर, शी मेट अ स्कूल फ्रेंड इन माय ग्रुप. तो मैं उनको बोला कि यार देखो, कैंसर की वजह से तुम दोनों वापस मिले है कि नहीं, अच्छी बात. हाँ, तो कैंसर हुआ, अच्छा हो कि नहीं, राइट. सो टेक द गुड इन द बैड. बट या वेरी नाइस एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ.
आपको कभी भी if you feel like you want to talk, you can reach out to any one of us, and we can they're always open to talk, and if you have a problem, connect with us. We've been through this, so maybe we can give you some advice and all. Okay, thank you for being with us today. Thank you. And Devansh is ready with his some drama. Okay, so I start. Yes. This is one of our groups play Chakravyuh, and this is so what I played Abhimanyu. Okay, but this is not my character, but this is what I prepared for this. So it's like मेरे रहते इस चक्रव्यूह का किसी को न कोई भय हो, जो पहचाने मुझे इस सभा में उनसे भी कहता हूँ, और जो ना पहचाने वो भी सुन ले, अर्जुन का बेटा हूँ। माँ के पेट में चक्रव्यूह का भेदन ज्ञान सुना था, पिताश्री ने चावल के दानों से व्यूह बुना था, फिर माँ को बतलाया था भीतर जाने का सब जौहर, और कान लगाकर सुनता था मैं मात गर्भ के भीतर। जब बचपन में मेरे साथी कंचों से खेला करते थे, तब मेरे मन में चक्रव्यूह के द्वार खुला करते थे। हे तात, आप बस 4 रथी 4 महारथी थे, फिर देखे इस चक्रव्यूह को कुछ क्षण में हम कैसे भेदे। हाँ, पर ध्यान रहे जब वापस आने की रणनीति आई, पिताश्री ने माता को बाहर की राह दिखाई, तब मेरी भोली माता को निद्रा ने आकर घेरा, और आधा ही हो पाया वो व्यूह ज्ञान वो मेरा। 7 दरवाजे तोड़ के मैं भीतर तो ले जाऊंगा, परंतु उस चक्रव्यूह से बाहर कैसे आऊंगा। That's it. Wow. Thank Thank you. you, Devansh. Wow. Thank you. And I know you have to leave at 6 for your class. So thank Yes, you so much for joining us, Devansh. Bye everyone, and thank you so much. Thank you, Devansh. Bye. It's Pankaj ji. Thank you very much. First of all, Divya, Devansh, and Ravi and Bharat. आपकी बहुत powerful stories हैं, सुन के बहुत ही अच्छा लगा, और I'm really feeling motivated. And thank you, Pukhraj ji, for organizing this talk with the young guns. I mean, I would say, not survivors but winners. Yeah. So, बहुत आपको congratulations, and the way you are, planning your life, and the way you have fought this. I mean, I have no words to express my gratitude to you. But there are a few things which I actually noted during our discussions, which I definitely would like to highlight now. रवि ने एक बहुत अच्छी बात कही कि मैं कुछ प्लान नहीं करता हूँ, तो मेरे को लगता है कि एक बहुत बड़ी अच्छी बात है कि मैं कुछ प्लान नहीं करता हूँ। और मेरे को भी आज लगभग 4 साल हो गए, एग्जैक्टली आज 4 years हो गए हैं मेरा कैंसर डिटेक्ट हुए हुए। 13th of June 2017 को फर्स्ट टाइम इट वाज डिटेक्टेड। And can you hear me? Yeah, we can hear you. Yeah, Pankaj ji, we can hear you now. Okay, sorry, I think वो थोड़ा नेटवर्क का इशू था। तो आज एग्जैक्टली 4 साल हो गए हैं मुझे मेरा कैंसर डिटेक्ट हुए हुए, बट आई एम फाइटिंग इट आउट। बट जो चीज मैंने सीखी है, और रवि को मैं इको करूंगा इस बात में कि अभी भी मैं भी बहुत ज्यादा प्लान नहीं करता हूँ मेरी लाइफ को। आई यूज्ड टू बी अ वेरी गुड प्लानर। जो मेरे कलीग्स भी हैं, मेरी फैमिली वाले लोग भी हैं, वो कहा करते थे कि हर चीज तुम प्लान करके करते हो, और हर चीज उसमें से अगर कुछ शिफ्ट होने लगता है तो तुमको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होता है, और फिर तुम उसको दोबारा ट्रैक पे लाने की कोशिश करते हो। बट जो इस बीमारी ने सबसे बड़ा चीज मुझे सिखाया है कि अब मैं प्लान करना बहुत सही नहीं समझता हूँ। मेरे को नहीं लगता है कि हमको हमारी लाइफ को बहुत लॉन्ग टर्म के लिए प्लान करना चाहिए। हमको जरूर ये देखना चाहिए कि आज के दिन में हम अच्छे से अच्छा क्या कर सकते हैं, और आज के दिन में हम अच्छे से अच्छा क्या सीख सकते हैं, और इस आज के दिन को हम कैसे एंजॉय कर सकते हैं। आई थिंक दैट इज समथिंग विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, एंड थैंक यू रवि फॉर हाईलाइटिंग इट। एक और बात जो आई यहाँ निकल के कि
I think you are in that particular age where and then thank you very much Mehul for highlighting this, is that this is a very unique chapter in your life. बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं 95%, 97%, 99% बच्चे जिनको ये एक्सपीरियंस नहीं हुआ होगा अपनी लाइफ में। तो उसको छुपाने की जरूरत नहीं है, उसको बताने की जरूरत है लोगों को कि मेरी लाइफ का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसको मैंने पढ़ा है और बहुत ज्यादातर लोगों ने नहीं पढ़ा है उसको। और जब मैंने पढ़ा है तो मैंने सिर्फ पढ़ा नहीं है उसको, मैंने एक्सरसाइज भी किया है उसको, मैंने उसके टेस्ट भी दिए हैं और मैंने टेस्ट जो है फ्लाइंग कलर से पास किए हैं उनको। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम करता हूँ मुझे पता है कि ऐसी जो स्टोरीज हैं वो बहुत बहुत आप लोगों को बताती है ये, और जो रिक्रूटर्स होते हैं उनको भी ये लगता है कि कोई ऐसा एक यूनिक एक्सपीरियंस हो आपकी लाइफ में जो आप शेयर करना चाहें कॉम्पिटेंसी बेस्ड इंटरव्यूज के अंदर। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी पावरफुल स्टोरी जो विच यू शुड थिंक ऑफ पुटिंग इट इन योर सीवीज कि हाँ मैंने कैंसर फाइट किया है और मैंने 12 साल की में किया है, मैंने 15 साल की में किया है, एंड आई एम स्टिल आई हैव लर्न सो मच आउट ऑफ दैट, बिकॉज ये चैप्टर्स सिर्फ ऐसे हैं जो आपको सिर्फ लाइफ सिखा सकती है। वो किसी पेपर में नहीं मिलेगा आपको, किसी बुक में नहीं मिलने वाला है, वो सिर्फ आपको लाइफ दे सकती है। एंड you yourself said that you are fortunate enough कि आपको ये बीमारी हुई और उसके बाद में आपने फाइट किया और एक नया एक चैप्टर आपकी लाइफ में ऐड हुआ है। तो इसको छुपाने की जरूरत नहीं है, इसको जितना ज्यादा से ज्यादा बता सकें उसको बताना चाहिए। और एक और जो इम्पोर्टेंट बात है जो मैं यहाँ शेयर करना चाहूंगा कि मेरी जो खुद की जर्नी रही है, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जो मुझे स्ट्रेंथ मिली है, पावर मिली, मुझे बच्चों को देख करके ही मिली। जब मुझे हुआ फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाई कैंसर, तो तब मुझे जो सबसे बड़ी पावर मिली, मेरे एक कलीग हैं उनका बेटा था, he was also around 10 years or 11 years जब उसको पहली बार ब्लड कैंसर डिटेक्ट हुआ। लेकिन उस बच्चे ने इतना स्ट्रांगली फाइट किया और आज वो बच्चा जो है यूएस की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। तो ये स्टोरीज ऐसी हैं जो सही में आपको कहीं ना कहीं छूती हैं। दूसरा स्टोरी मैं बताना चाहूंगा, जब मैं टाटा मेमोरियल में मेरा हॉस्पिटल में चल रहा था इलाज, तो एक बहुत छोटी बच्ची को मैंने देखा वहां पे, और उसके सब बाल जा चुके थे और उसकी आईब्रोज भी चली गई थी, केमोथेरेपी चल रही थी, बट शी वाज सो एनग्रॉस्ड इन हर ओन मोबाइल पे खेल रही थी। और मैं जस्ट मेरी केमोथेरेपी के अगले दिन शायद मैं गया था हॉस्पिटल और आई वाज सो मच इन पेन। तब मैंने उसको देखा, मुझे उसको देख के लगा कि एंड देन शी वाज सो नाइसली डेक्ड अप कि उसने कैप लगा रखा है उसकी मदर ने और थोड़ा सा उसका मेकअप किया हुआ है, एंड दिस गर्ल वाज आई थिंक मे बी 7 or 8 years old। तो उसको देख के मुझे इतना अच्छा लगा, इतनी पावर मिली। मुझे लगा कि ना अगर ये बच्ची जो है वो अगर इसको झेल सकती है, अगर ये बच्ची इसमें खुश रह सकती है, तो मैं क्यों नहीं रह सकता हूँ। तो वो जो चीजें हैं, मुझे जो रियल स्ट्रेंथ मिली है वो उन्हीं बच्चों से मिली है। आप ही तरह के लोग रहे होंगे शायद, वो छोटे छोटे बच्चे जो कभी कोई 7 साल का होगा, कोई 8 साल का होगा, कोई 12 का होगा, कोई 14 का होगा, लेकिन जो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है वो डेफिनेटली आपकी स्टोरीज लोगों को दे सकती हैं। तो शेयर इट, डोंट बी शाय and don't hide it, and be proud of this chapter in your life. That's what I wanted to say. And then thank you very much again for your powerful stories. Keep it up, do good in your life, be connected. मैं भी एक ऐसी संस्था से जुड़ा हूँ जो बच्चों के लिए काम करती है। I work with UNICEF, and I know that how important is dealing with childhood diseases, but we also know that if children can overcome this disease, they really come out as very strong people in their life, and they really do good in their life. So all the best to all of you, and then enjoy life. Thank you. Wow, thank you so much, जी। It's a very beautiful sharing, and आपने इसको इतना अच्छे से समराइज किया है पूरी हीलिंग सर्कल को। So thank you so much for that. And definitely बच्चों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उनकी जर्नी में जो करेज होता है, जो इंस्पिरेशन होती है, वो शायद उन्हें भी नहीं पता होती कि वो कितना इंस्पायर कर रहे हैं हम सबको। And as दिव्या also rightly said कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम छोटी सी चीज को बहुत बड़ा बना लेते हैं, बहुत रिसर्च भी करते हैं, और कहीं ना कहीं we all get lost in that whole new world of cancer. So and बच्चे जबकि उस चीज को बहुत easy से lightly ले लेते हैं। So thank you everyone. It was a wonderful experience. And Pukhraj, would you like to add here anything, and then we will hear from Ravi. Well, I am so happy that these teenagers finally got a chance to express themselves, to share their stories. And if you need more, I have a list of 500 teenagers I can send across of every cancer you want. So it's so nice, when they are able to share, and we are also able to share with them
just the whole energy सारी बदल जाती है. Everything becomes so positive. Yeah. And that is what we all require in today's time especially. So thank you for having this beautiful platform where everybody can express themselves and learn from each other. Yeah. Thank you so much. Thank you, Pukhraj. Yeah, Ravi. Yes. Yes. So आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, मतलब सुन के भी, मतलब अडल्ट कैंसर के बारे में तो कुछ थॉट्स आए मेरे मतलब दिमाग में कि चलो हमें कैंसर हुआ बच्चों को, हम तो अपने मम्मी पापा के पास रो देते हैं कि हमें दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, बट जो बड़े लोग होते हैं वो तो नहीं रोएंगे ना अपने बच्चों के सामने. अगर कोई बड़े लोगों को रोता हुआ देखेगा तो वो बोलेगा इतना बड़ा होके रो रहा है ना, क्योंकि उनका पेन अलग है, उनका पेन अलग है, हमारा पेन अलग है. अगर हमें कुछ होता है, हमारे मम्मी पापा अगर वो बड़े हैं वो अपने बच्चों के सामने नहीं रोएंगे, क्योंकि अगर वो रोएंगे तो उनके बच्चे उन्हें देख खुद दुखी होंगे, और बच्चों को दुखी मम्मी पापा नहीं देख सकते. वो दोनों डिफरेंट चीजें हैं, उनको हम लोग टैली नहीं कर सकते एक दूसरे के साथ. Very deep insight you have Very shared. beautiful. Very beautiful. Yeah. Okay. Nice. I don't remember Nitesh shedding even a tear when he was going through this journey. तो कभी नहीं, कभी देखा ही नहीं मैंने आंसू उनकी आंखों में. तो काफी सही बात बोली आपने. Great. And what is the one thing you said? Yeah, of course, cancer is a blessing. But any act of kindness that you will always remember? Anything that touched your heart very deeply? Like I think मुझे ना जो मेरा कैंसर जर्नी है उससे बस मुझे लोगों से मिल के रहना, घुल मिल के रहना उनके साथ, क्योंकि एक चीज होती है, लोग खुशियां तो सबके साथ बांटते हैं बट अपना दुख किसी के साथ नहीं बांटते हैं. तो वो चीज जानने में ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अगर किसी का दुख मैं उसके साथ शेयर कर सकूं तो मुझे भी हल्का लगेगा. वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं किसी के साथ चीजें शेयर करूं, वो मेरे साथ चीजें शेयर करें. तो ऐसा हॉस्पिटल में होता था, मैं बच्चों पे अगर बात नहीं होती तो मैं नर्सेस के पास चला जाता था, क्योंकि वो भी तो पूरे दिन इंजेक्शन लगा रहे हैं, ना किसी से बात करना. तो मैं वहां जाके उनसे बात करता था, उनको भी अच्छा लगता था कि चलो यार इतने पूरा 12 घंटा 24 घंटे के काम में कोई तो है हमसे बात करने वाला. बच्चों के साथ रह के ना, जो बड़े होते हैं वो भी बच्चों की तरह रहते हैं. तो वो चीज मुझे अच्छी लगती है अपनी लाइफ में, कि मैं अपनी लाइफ में दूसरों को भी खुशी दे सकता हूँ. तो वो चीज मेरे को बहुत अच्छा लगता है. Wow, thank you. Sharing is caring, and we can all see ripples of all of your sharing here as well. So thank you so much once again for forming a beautiful healing circle today. And thanks to everyone for joining in, Pukhraj, Divya for organizing this, taking the initiative of this, and Bharat, Ravi, Krish, everyone, thank you so much. And Thank you. We'll conclude today's healing circle with this note and see you all next Saturday. Thank you, Div, so much. Bye bye. Thank you everybody. Thank you, Ravi. Thank you, sir.